Hey everyone, a very good evening to all of you. I'm sorry I'm a little late. It's like a lot of connectivity issues today due to bad weather in Dehradun. And welcome to our fifth session of these parenting sessions. And this is session basically which is going to focus on the developmental milestones and also uh, the red flags, the things we really need to identify to understand that what exactly the problems are, where exactly the child is lagging behind, and how and why intervention is required. This session is basically focused for the parents who are new parents and who have children till 5 years of age, or if it is certain things that have not been achieved, it is for those parents. We just I'll just give you a brief introduction again. I'm Charanpreet Kaur. Those who don't know me, I'm a child psychologist and a special educator working in Dehradun. It's been like 10 years now in this field, and I'm working with a reputed school of Dehradun, doing a number of interventions and sessions. So, we are doing these series of parenting sessions in which we have covered a lot and we are going to cover a lot. So, it is going to till like for 12 weeks. So, we are in a fifth week. Every week, I do one session and I post all the details. I'm leaving my number here. You can contact me for any queries or anything you want to ask. You can just get back to me. I'm always there. So, let's start this session. So, why I felt this need of doing this particular session was because there are a lot of times that we don't identify or we don't give a particular stimulus to a child, and the child is not able to achieve a certain kind of, milestone. So, जैसे मैं पता है कि बेसिकली हमारा जो डेवलपमेंट है ऑफ अ चाइल्ड इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन थिंग्स and for this we divide these certain things into various domains of development which we say. So why we have taken this birth to 5 years wala thing is important to understand, because these are the critical periods, especially from 3 years of age to 5 years of age is a critical time when a child is actually learning. The mind is actually in a stimulus, in a filtration process, and a, a mind is actually open to learn everything. So this is why it is known as the critical period for everyone, for each and every child. Now what happens is that कभी कभी हम ये critical periods को मिस ऑन कर जाते हैं, हम कभी कभी ये ओवरकम कर जाते हैं कि दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग, सो व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि हम अपने आप को ग्रेटिफाई करने लग जाते हैं कि ठीक है, नहीं हो रहा, हो जाएगा, अभी नहीं बोल रहा, बोल लेगा, अभी नहीं चल रहा, चल लेगा. बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट इज़ दैट अगर नहीं चल रहा तो देन आई एम नॉट सेइंग इट इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम, but there are certain things which says a child is at a risk, why he is not doing this. So we need to understand कि अगर एक बच्चा एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर रहा तो हमें जितना जल्दी हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे या जितना जल्दी हम उसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी हम अपने चाइल्ड को बेनिफिट करेंगे. द नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन द पेरेंट्स कम इन एंड स्कूल में आई सी कि पेरेंट्स आते हैं बट दे आर अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन दैट दिस इज समथिंग, दे नो कि कहीं ना कहीं कुछ इशू है, but they are not able to understand कि वो क्या इशू है, they are not able to address that issue, and they are not able to accept that issue. That acceptance is really really important. वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना जल्दी हम अर्ली इंटरवेंशन करेंगे फॉर अबाउट एनी थिंग उतना जल्दी. सो वाई इज़ द नीड ऑफ अर्ली इंटरवेंशन. इंटरवेंशन क्या है? इंटरवेंशन इज़ बेसिकली जो चीज़ नहीं हो रही है. इट्स लाइक you have a whole puzzle but there's something missing, and you need to put that piece inside that child so that he is complete. ये intervention है. There are a lot of other difficulties also. So let's start it from birth. Say जब एक बच्चा पैदा होता है, he takes, he's there, he's born. What do? Most of us are not aware that the first thing a doctor should do is the APGAR score. APGAR score is really important. क्या है APGAR score? I think most of the parents को नहीं पता होगा. When my son was born, it was a C-sec.
so cesarean delivery. First question that I asked the doctor is, आपने आपका score किया? Because I was aware. Apgar score is basically which is done at the time of birth, 2 minutes and 5 minutes. So वहाँ पर आपके बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, एक स्क्रीनिंग की जाती है. एंड वाई शुड अ चाइल्ड क्राई? इट्स बिकॉज जब बच्चा रोता है तो हमारे लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेट होते हैं. there's a proper respiration that starts because अभी तक तो प्लेसेंटा से हो रहा था, जो भी ब्रीदिंग ऑक्सीजन सप्लाई सब प्लेसेंटा से हो रहा था. बट नाउ the child has to breathe independently, and when the child has to breathe independently the lungs has to work. So basically the crying has to be there. वो सबसे पहला पॉइंट है ये आइडेंटिफाई करने का कि अर्ली क्राई था या लेट क्राई था. एंड यू शुड ऑलवेज कंसिडर दिस पार्ट. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्ली क्राई था या नहीं था. अगर लेट क्राई था, यू शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल अबाउट द वेरियस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, वेरियस रेड फ्लैग्स कि कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, कि कुछ डिलेज तो नहीं है. यू हैव टू फिगर दिस आउट इफ देर इज no cry or a delayed cry when your child was born. The second thing, when you do the APGAR score, it should be around 7 to 10 की रेंज में हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं. बेसिकली a blend of your बच्चा, it's pinky or it's blue, or if it's like how फ्लॉपी है या नहीं है. देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट क्राई है या नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉपर रेस्पिरेशन है या नहीं है. सो दिस एपगार स्कोर इज अ ब्लेंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो व्हेन यू नो दैट if for some reason the APGAR score is low, you have to be very careful that ये वाली चीज़ जो है वो नहीं थी. So the parents who are listening who are going to be mother or father soon, you have to be very careful about these things, and you need to tell your doctor that the doctor needs to assess that APGAR. It's really important for the child, for the child's well-being. So अब हमने क्या किया है, 5 years तक हमने domains of development को divide कर दिया है into social और emotional, the areas of independent activities of daily living which we say. मोटर स्किल्स को हमने डिवाइड कर दिया है ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स में, एंड वी हैव डन द लैंग्वेज पार्ट. There is another domain of development which is cognitive, but for till 5 years of age we consider it in the language only, because बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहीं पे cover up हो जाती हैं. So I have not taken it separately. So what I'm going to do is I'm just going to talk about certain domains age wise, and उसके बाद हम discussion करेंगे कि फिर red flags क्या हैं. सो जब एक बच्चा बॉर्न होता है, बर्थ से लेके फॉर से 6 months तक, इफ़ आई टॉक अबाउट द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सबसे पहला जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं विद वेदर देयर इज़ अ प्रॉब्लम और नॉट, द फर्स्ट थिंग इज़ द सोशल स्किल्स, द सोशल स्माइल. एक बच्चा आपको देख के हंसता है, नॉट इमीडिएटली, आई एम नॉट सेइंग कि 1-2 दिन का बच्चा ही आपको देख के हंसने लग जाएगा, नो, बट सर्टेनली व्हेन ही स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग मदर और फादर इनिशियली, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ जो अटैचमेंट होगा दैट विल बी विद द मदर, बिकॉज वो मदर इज़ द वन जो सारी नीड्स को पूरा कर रही है. मदर इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली डूइंग एंड कवरिंग ऑल द थिंग्स फॉर द बेसिक नीड्स फॉर अ चाइल्ड. सो यहाँ पर टिल 6 months ऑफ एज अ चाइल्ड इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज or distinguish strangers and mothers. The social smile is there. If you do some particular kind of a thing, a child actually identifies and smile on you. When you come to 6 and 9 months, यहाँ पर the familiarity increases. फादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अंकल आंट से, मासी, ताऊ ताईज, चाचू चाची, सबसे जो है वो एक familiarity बढ़ती है. And the child starts to push away things if he doesn't like it. यहाँ पे pushing away आना शुरू हो जाता है till 9 months of age. When 9 to 12 months comes, a child starts playing peekaboo games, bye bye, hi, ये वाली चीज़ें जो हैं, the social games starts building up in a child. 18 to 2 years में, 12 to 18 months में, a child preferably is asking for a doll, a blanket, kisses you, or feels shy, or greet people with hi or something similar. Then coming on to 18 to 2 years,
यहाँ पर a child is able to identify the yes and no. He shows sympathy to you. He responds to, if you stop him and say you don't have to do this, यहाँ पर बच्चा आइडेंटिफाई करने लग जाता है वो सर्टेन स्टिमुलस को. सो यहाँ when we talk about these certain things that वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, आप उसको नो करते हो तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो इस वाली स्टेज पे आता है. When we talk about, we are just talking about the social emotional part right now. So when we come to 2 to 3 years, यहाँ पर he tries to help you with a certain task. अच्छा मम्मा मैं ग्लास रख देता हूँ, not saying it verbally but he tries to help you in that. And he tries to plays with cars, dolls, and especially the most important जहाँ से हम identification कर सकते हैं is the kind child is doing. At the age of 3, from 2.5 to 3 years of age, a child is going to basically, you will see the pattern of play in a child. जहाँ पर एक छोटा बच्चा इनिशियली सिर्फ मैनिपुलेशंस करता था, ऑब्जेक्ट्स को फेंकता था, उसकी आवाज़ को सुनता था, छोटा बच्चा. यहाँ पे you will see a lot of transition when he is coming on to approximately at a 3 years of age. You will see that a child is actually now playing as a role kind of a thing, a pretend kind. He's pretending to play. अगर वो टी सेट है उसके पास या उसके पास किचन सेट है, वो चाय बनाकर ही इज़ ट्राइंग टू एक्ट एज यू. फ़ोन है तो वो पापा की तरह फ़ोन करके ही इज़ ट्राइंग टू एक्ट जैसे पापा करते हैं. तो यहाँ पे प्रिटेंड प्ले आ जाता है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर. इफ़ प्रिटेंड प्ले, इफ़ रोल प्ले इज़ देयर, मेक बिलीव प्ले इज़ देयर, कि उसने ये सोच लिया कि दिस इज़ जैसे कुछ बच्चे इफ़ यू सी वो रजाई को लेके रजाई में बहते हैं, ये हमारा घर है एंड वी हैव टू सिट हियर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड. वो कुछ कुछ चीज़ों को प्रिटेंड करके एंड दे रोल प्ले. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इफ़ योर चाइल्ड एट एज ऑफ 3 or 3.5 इज़ नॉट डूइंग इट, इट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर यू. यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज सम काइंड, या तो हम उसको स्टिमुलेशन. सो रेड फ्लैग में भी इट इज़ नॉट दैट आई एम सेइंग अ चाइल्ड हैज़ अ प्रॉब्लम. अ चाइल्ड, रेड फ्लैग मीन्स दैट ईदर द स्टिमुलेशन इज नॉट बीइंग गिवन, और अगर स्टिमुलेशन दी जा रही है तो वो बच्चा उस स्टिमुलेशन को ले नहीं रहा है. सो इफ़ यू सी सम काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग इन योर चाइल्ड, what you have to do is you have to provide him stimulation first. ऐसा नहीं कि हम सीधा बोलेंगे कि हाँ इसको प्रॉब्लम है. क्या पता आपने उस चीज़ के लिए उसको एक्सपोजर ही ना दिया हो, क्या पता उसने उस चीज़ को लर्न ही ना किया हो, तो उसे पता ही नहीं है, उसको एक्सपोजर ही नहीं है, उसने कभी उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया. For example, most of the kids are single. We have single kids these days. So जहाँ पे बच्चे नहीं होते वहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, वो अपने कुकून में रहता है बच्चा. उसे नहीं पता कि कैसे एक्सपोजर लेना है, कैसे किसी चीज़ के साथ प्ले करना है, अनटिल एंड अनलेस हम उसे ये चीज़ को शो करें. नॉर्मली दिस प्ले कम्स ऑन योर ओन, चाहे हम उसे सिखाएं या ना सिखाएं. बट कभी कभी कुछ बच्चों को स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, एंड इफ़ यू गिव दैट काइंड ऑफ स्टिमुलेशन टू a child understands, oh yes, I have to do this. So then he starts following. But if it doesn't at the age of 3, that means there is certainly some kind of a significant thing which we need to work on. Now 3 to 4 years of age में a child starts to give directions to others. ऐसा कर दो, ऐसा कर दो. Cooperation आ जाता है play में. The child starts sharing छोटी छोटी things with you. ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करना. But a child understands that if I give it to some of the child, and I'll get it in the same way. Ice cream की bite है तो मैं दूंगा तो मुझे भी ice cream की bite मिलेगी. So that kind of a cooperation comes in a child. Also, a child is very protective towards the younger child. उसको पता चल जाता है कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मुझे इसका ध्यान रखना है. So these all things come into 3 to 4 years of age. Then we talk on to the 4 to 5 वाला bracket. यहाँ पर क्या है? A child starts following simple rules. जैसे हम board games खेलते हैं, लूडो खेलते हैं. I'll not say that a child is able to carry out the whole game, but yes, a child is definitely able to understand कि लूडो में हम पहले डाइस चलते हैं, काउंट करते हैं, जो नंबर आता है उतना नंबर चलते हैं. बाद में वो रेस्टलेस हो जाएगा, मे बी 2-3 बार चल के ही से ओके मेरी गीटी फूक गई. बट देन certain rules, certain he'll start following that kind of things. Maybe ludo, maybe card games, maybe carom. So वहाँ पे understanding आनी शुरू हो जाएगी. Plus there is lot of leadership among these children at this particular age. यहाँ पे they feel कि
हमें सब कुछ पता है और हम सब कर सकते हैं। तो वो लीडरशिप इज़ एक्चुअली क्वाइट नॉर्मल, बिकॉज व्हेन वी हैड लास्ट सेशंस आल्सो, उसमें मैंने एक बात बताया था कि देयर लॉट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म इन दीज किड्स इस टाइम पे। ईगोसेंट्रिज्म इज़ बेसिकली यहाँ पे बच्चा डजंट अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। यहाँ पे उसको सिर्फ आई से मतलब है, उसके लिए आई इज़ द मेन फोकस। ईगोसेंट्रिज्म इज़ समथिंग जहाँ बच्चा किसी और, अपने से बियॉन्ड किसी और के बारे में नहीं सोचता है, एंड दैट इज़ अ पर्टिकुलर नॉर्मल स्टेज फॉर अ चाइल्ड। एंड इफ अ चाइल्ड इज़ डूइंग इट, मैं सिर्फ ऑलवेज मैं की बात करता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज this is the stage where he's understanding the dynamics of a relationship. So when a child is doing that particular thing कि ये मेरा है, मुझे दो, मुझे करना है, so उस particular time पे it is absolutely fine if a child is showing that egocentric traits to you. This is absolutely a normal phase of development. Now coming on to the fact that what is the normal activity of daily living, जब हम बात करते हैं कि बच्चे को कितना इंडिपेंडेंट बनाना है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमने लास्ट टाइम पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात की थी, वी हैव सीन दिस कि हम आज के टाइम पे वी आर लाइक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। हम क्या करते हैं कि बच्चा कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश भी करता है, वी स्टॉप देम राइट अवे कि नो, you are not supposed to do this. So for this, for like ADL kind of a thing, activity of daily living, जो डोमेन की हम बात कर रहे हैं, जब एक बच्चा टिल 6 months ऑफ एज है, यहाँ पर ADL क्या है, यहाँ पे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, बट वो क्या कर सकता है कि वो अपनी बॉटल की रिकॉग्निशन कर सकता है, वो अपने ही इज़ एबल टू आइडेंटिफाई दैट स्टेटस कि ये मेरी बॉटल है। वो कंफर्ट कर सकता है अपने आप को थम से या पैसिफायर से। सो दिस इज़ फर्स्ट स्टेज जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं कि हम वो कितना इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा सा रिएक्शन देते हैं बॉटल देख के, सो दैट मीन्स उसके अंदर वो आइडेंटिफिकेशन आ रही है, एंड दिस चाइल्ड इज, और अगर नहीं हो रहा तो दैट मीन्स ही इज नॉट नोटिसिंग दैट सिंपल स्टिमुलस दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम। सो वी नीड टू स्टिमुलेट द चाइल्ड यहाँ पर। The second one, the second stage में 6 months to 9 months of age में, a child starts to hold the bottle on his own. अगर हम उसको हल्का सा सपोर्ट दे के एंड उसको बॉटल होल्ड करने की कोशिश कराते हैं, सो वहाँ पर a child on his own, but you have to be very careful. You have to supervise the child always, because sometimes it goes into the windpipe as well. So we have to be careful. We have to supervise the child in that case. For the next thing, like 9 to 12 months of age, a child should be able to actually pick up a spoon by the handle. अब यहाँ पर एक्चुअली हमारा ADL इफेक्ट होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्योंकि हम उसको इंडिपेंडेंट ईटिंग नहीं करने देते हैं। वी सेम स्टॉप, यू विल स्पिल, नहीं पकड़ा जाएगा, स्पून कैसे पकड़ोगे, कैसे करोगे। सो यहाँ पर एक्चुअली आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि नो, द चाइल्ड एक्चुअली हैज़ टू होल्ड इट। सो यहाँ पे स्पून होल्डिंग अगर हम करना शुरू करेंगे तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा दैट येस आई हैव टू ईट ऑन माई ओन। सो वो इंडिपेंडेंट हैबिट्स जो हम इनकलकेट करते हैं वो इस स्टेज पे हम करना शुरू करते हैं, बट वी डोंट टेल हिम टू ईट, जस्ट टेल हिम टू होल्ड द स्पून। For the next stage, like 12 to 18 months of age, यहाँ पर a child is able to lift the cup and take it to the mouth and drink on his own with a little spilling, and he is able to feed himself with spoon, of course with spilling, and that is on his own. अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे आके कई बार पूछते हैं till that 2 years of age कि मैम what is the right age फीडर छुड़ाने का, बॉटल छुड़ाने का। So I say, as soon as you think your child is ready to hold a cup, it's always a better idea to just get rid of that bottle or feeder, because जितना this is a fact that जितना हम उसको फीडर या बॉटल ज़्यादा देंगे उतनी ही मसल्स वीक होंगी, और उतना ही अ चाइल्ड विल मोस्टली डीले शो करते हैं स्पीच में, क्योंकि जितना हम ज़्यादा फीडर, जितनी हम ज़्यादा बॉटल देते हैं, जितनी ज़्यादा सकिंग होती है, उतनी ज़्यादा हमारी मसल्स पे, ओरल मसल्स पे इफेक्ट होता है। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू लॉन्ग टर्म में हम फीड करें बच्चे को विद अ बॉटल, बिकॉज वो हमारे बच्चे की स्पीच लैंग्वेज पे इफेक्ट कर सकता है। So we have to be very careful that this is the right stage, 2 years of age में you can just stop
डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि नहीं अभी तो बॉटल ही देते हैं, अभी तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, अभी तो वो पी नहीं पाएगा. दिस इज ऑल अ नोशन. बेसिकली बच्चा सब कर सकता है, हमें सिर्फ उसको स्टिमुलेट करना है, विच आई ऑलवेज से, जितनी हम उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे उतना ज़्यादा बच्चा इज गोइंग टू डू ऑन हिज ओन. So after that, coming on to like 18 to 2 years of age, a child is able to eat with a fork, with a small. The reference of the spoon and fork is the baby ones, not the ones we use. So some कभी आप 2 साल के बच्चे को बोलो कि fork पकड़ के he's eating. No, the smaller ones which are actually a little safe for them, you can always start with that. When once you feel that a child is now able to do that particular thing, you can move on to that particular thing. So now a child is able to eat with a spoon. He is able to, take off his shirt or jacket. We don't expect to remove his pants or something, but yes, उसका जो एक शर्ट उतारना है या अपने आप को टी शर्ट, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टी शर्ट विच गेट्स लाइक ऊपर से उतरती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन जो सीधा पीछे से हम उतार सकते हैं. सो यहाँ पर अ चाइल्ड इज एबल टू डू दैट. Next 2 years to 3 years of age, may a child is able to open the door by turning the knobs. He is able to wash his hands. अब यहाँ पर भी बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आती है कि नहीं मैम ये तो अभी तक कुछ भी नहीं करता, उसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि हमें कैसे हाथ धोने हैं, कैसे करना है. बट आपने उसको मौका ही नहीं दिया है करने का. इफ़ यू टेल हिम इनिशियली, उसको साथ ले जाके कि एवरी टाइम आफ्टर एवरी मील यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. अब कभी कभी क्या होता है कि वॉश बेसिन यहाँ होता है और बच्चा यहाँ होता है, एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रीच इट. That is the number one reason that a child is not doing it on his own. So what we can do, we can place a small stool, we can tell him to climb on that stool and wash his hands. So हमें छोटी छोटी adaptations करनी है बच्चे की life में. Then he is able to dress himself, but with help of course. 3 to 4 years of age में we expect the child to be toilet trained. जितना यहाँ पर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग होगी उतना ही आगे चल के उसको इन हिज प्री स्कूल, इन हिज स्कूल ईयर्स, इट विल बेनिफिट हिम. सो यहाँ पर वी एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू गो टेल द वॉशरूम वाला थिंग एंड go on his own, but with supervision a little. He is able to wash his face, dress or undress on his own, except the shoelaces. We don't expect the child to tie the laces. बटनिंग, एक से ज़्यादा बटन वो अपने आप को कर सकता है शर्ट का, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, बट आपको उसको सिखाना पड़ेगा. यू हैव टू इफ़ ही इज़ क्रॉसिंग द रोड, he should see here and there while crossing the road, and he should go to the toilet without help till 5 years of age. For like 5 is the last we expect the child to be toilet trained completely. तो 5 years of age तक एक बच्चे को completely washing on his own to going to the toilet, he has to achieve this particular thing which we expect from the child. Now let's talk about the motor and gross motor things. So motor में it's basically divided into the gross and fine motor kind of a thing. So जब हम gross और fine motor की बात करते हैं, ग्रॉस मोटर क्या है और फाइन मोटर क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है. ग्रॉस मोटर स्किल्स वो हैं जहाँ पे हम अपनी बिग मसल्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल यूजिंग आवर हैंड्स, जंपिंग, होल्डिंग थिंग्स, ये सारा हमारा ग्रॉस मोटर. लार्जर मसल्स को यूज़ करना इज़ अ ग्रॉस मोटर एक्टिविटी. एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज़ आर जब हम छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, दोज आर द फाइन मोटर एक्टिविटीज़. सो इसको मैं साइमल्टेनियसली डिस्कस करूँगी. When we start from like birth से लेके 6 months of age तक, a child is able to lift his chest. If we talk of the gross motor skills, a child is able to lift his chest and head when lying on the stomach. तो जब हम उल्टा लेटाते हैं तो बच्चा अपने हेड को उसको होल्ड करना चाहिए, and he should turn around while lying on the stomach. So that is rolling वाला thing. When we talk about the fine motor thing, a child should look at the faces, the toys, and should try to reach to that toys. And he should be able to pick up the toy with one hand at the age of 6 months of age. If you see that a child is not doing this particular thing, then that's a red flag. You have to see that वहाँ पे single-handedly वो toys को handle कर रहा हो. When we talk of the gross motor skills from 6 to 12, it is like a child should be able to roll over from back to stomach. He is able to sit alone, steady without support.
That's again a red flag. If a child at till age of 1 year is not able to sit properly, you have to be very careful कि उसकी sitting क्यों नहीं आ रही है, because by 6 to 8 months we expect a child to sit, and if it is not happening, you have to give him that stimulation initially. फिर भी आपको लगता है कि वो नहीं बैठ पा रहा है, then you definitely need to contact your pediatrician for sure, because that is a red flag for your child, that why he is not able to sit on his own. When we talk about the fine motor activities, a child should be able to transfer, a toy from one hand to another, and he should be able to pick the objects with using his index finger and thumb. So जो ये वाली picking जिसको हम pincer grasp बोलते हैं, it has to be there. अगर ये नहीं आ रहा है, that means for sure there is a red flag and you need to provide that stimulation to a child, and you have to wait for a while. हम प्लस माइनस जो हम ये डोमेन्स वी आर डिस्कसिंग, हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं फॉर 2 months, लाइक +2 months -2 months, कुछ जल्दी अचीव कर लेते हैं, कुछ लेट अचीव करते हैं. बट वेन यू सी इट इज़ नॉट हैपनिंग एट ऑल, साइड बाय साइड आपको स्टिमुलेशन देना शुरू करना पड़ेगा. एंड साथ ही साथ इफ़ यू सी आफ्टर दैट ऑल्सो द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अचीव, then certainly you have to visit a pediatrician to show that to the child. Now coming on to the 9 to 12 months of age, a child should actually start crawling and should be able to walk holding the objects. And if for the fine motor, a child should be able to pick up small objects precisely with thumb and finger grasp. वो finger वाली grasp आनी शुरू हो जानी चाहिए, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को put out करना शुरू कर देना चाहिए. For gross motor things, the child should be like for 12 to 18 years, the child should stand without support and he should walk without help. For like 2 years, 2 years से पहले भी हो सकता है, but अगर 2 years तक if a child is not doing it, a child is not able to walk, then you definitely need to look into the matter that why a child is not able to walk. And definitely till 2 years of age, a child should start running. For fine motor, a child has to stack 2 or more objects, like एक के ऊपर एक वाला stacking आना चाहिए, 2 छोटे toys इकट्ठे एक hand में आने चाहिए, and scribbling start हो जानी चाहिए with the crayons. When we talk of 18 months to 2 years of age, यहाँ पर a child should be able to kick a ball. He has to run well. He's going to fall very often, but he has to start running. Walking upstairs and downstairs आ जाना चाहिए, and he should be able to build up the tower 4 or more blocks को लेके turn करना आ जाना चाहिए. These are the very small things that you need to notice that it is happening or not. When we talk of ages 2 to 3, motor skills में ladders या slides, यहाँ पे बच्चे को खुद से चढ़ना चाहिए. He should stand on one foot without a support, and he should walk downstairs and upstairs. पहले walks जो इससे पहले वाला डोमेन था, जो इससे पहले वाला एज ब्रैकेट था, उस पर बच्चा जब चढ़ रहा है सीढ़ियाँ, तो वो डबल स्टेप करके चढ़ रहा है. बट यहाँ पे इन दिस 2 to 3 years of bracket, a child has to go one by one step, then another step, one step, another step. So alternate steps आ जाना चाहिए. Whereas with the fine motors, scribbling in the circular motion has to come. He should be able to draw a vertical line, and cutting with child-friendly scissors has to be there, not with like the difficult ones. और cutting में ऐसा नहीं कि हम उसको patterns दे रहे हैं cut करने के लिए, but a child should be able to cut those. 3 to 4 years of age में a child should start riding a tricycle, hop on one foot without support. And fine motor mein, he should draw a complete circle, and he should be able to cut with the small scissors across the paper. So now, without any patterns, he has to cut the paper. Then 4 to 5 years mein, he has to skip or make broad jumps. Long jumps करना शुरू कर देना चाहिए. Swinging on his own has to come. He should be able to draw recognizable pictures. He has to draw body with at least 3 parts present, maybe eyes, maybe nose, but 3 body parts essentially have to be there. When we come on to the last domain of development, that is the language thing. यहाँ पर language basically हम divide करते हैं into 2 parts, the receptive and the expressive. ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा बोल नहीं रहा तो उसकी लैंग्वेज नहीं है. एक्सप्रेसिव इज समथिंग विच ही सेज, बट रिसेप्टिव इज समथिंग विच ही अंडरस्टैंड्स. वट एवर वी से ही इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग.
सो लैंग्वेज में जब एक बच्चा बॉर्न होता है, he starts to react to the voice you give him. He starts to vocalize, जिसको हम cooing और chuckling बोलते हैं, वो start हो जाती है. और socially he starts to respond at the 6 months of age. When we go to 6 to 9 months of age, a child responds to his name. When you call him, he looks at you. That is another important red flag. If you see that a child is not responding to his name by the age of, say, 1 year, then there is definitely, you need to focus on that particular thing. You need to provide stimulation initially, and then after that, you have to stop and go to a pediatrician to make sure that there is no problem, no certain issues on to that. And up 6 to 9 months of age may there's a wide range of vocalization. 12 months तक a child starts saying mama, papa, dada, dedo, baba, ये वाली चीज़ें, and he starts understanding stop and go वाली चीज़ें. So रुकना है, जाना है, ये यहाँ पे understanding आनी शुरू हो जाती है. 12 to 18 months of age में a child starts saying 1 to 2 words. सिंगल वर्ड यूज़र हो जाता है. ही इज़ एबल टू आस्क फॉर सिंपल थिंग्स. खाना खाना है, पानी पीना है, मम दे दो, पानी दे दो, भूखी, ये वाली चीज़ें एक सिंगल वर्ड्स में आनी शुरू हो जाती हैं टिल 18 months ऑफ एज. किसी का थोड़ा बियॉन्ड चला जाता है 2 years, 2.2 years. But when it is not coming, then it is a red flag for you that why a child is not speaking that thing, why he is not expressing. Maybe he's spending too much time on phone और टीवी, इसलिए उसका स्टिमुलेशन नहीं है, या हम उससे कम बात करते हैं इसलिए उसका स्टिमुलेशन नहीं है, या देयर इज सम अनदर प्रॉब्लम. When coming on to 18 to 2 years of age, we have to follow, the child starts following the simple instructions. यहाँ पर सिंपल इंस्ट्रक्शंस मतलब एक सिंगल स्टेप, लाइट बंद कर दो, रिमोट दे दो. सो वो अंडरस्टैंड कर रहा है, बोल नहीं रहा है, लेकिन रिसेप्टिव स्किल्स उसकी वन सिंगल इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही हैं. वेर एज 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन इज उस रूम में जाके वो लाइट बंद कर दो. सो जब हम 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं इस एज पे, वो बच्चा डजेंट अंडरस्टैंड कि, क्योंकि आपने उसको 2 स्टिमुलेशन दे दिए एक साथ. अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू फिगर आउट कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. Then by the end of like 2 years, 2.2, यहाँ पर a child actually starts following your 2 step instructions. 2 to 3 years of age bracket में a child actually starts saying 2 to 3 words, or weave it in a sentence. He talks clearly, understandably at that particular point of a time. Prepositions का use आना शुरू हो जाता है, in, on and under या beside. इससे ज़्यादा चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड, मतलब वो यूज़ नहीं करता प्रेपोजिशन, बट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेपोजिशन. ही डजंट नो दैट्स अ प्रेपोजिशन, बट ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. 3 to 4 years of एज में अ चाइल्ड शुड कंबाइन सेंटेंसेज. एंड और बट का यूज़ आ जाता है, कनेक्टर्स का, तो, और, ऐसे करके. 4 primary, at least 4 primary colors a child should be able to he should be able to correctly. just give me a minute. Yeah, so a child यहाँ पे 4 primary colors जो है वो correctly identify करने लग, sorry. सो 4 primary colors को a child is able to understand. अब प्राइमरी कलर से मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा पिंक, गोल्डन, सिल्वर आइडेंटिफाई कर रहा है. सो प्राइमरी कलर्स आर बेसिकली समथिंग विच आर द बेसिक कलर्स, द बेसिक रेड, द बेसिक ब्लू, और द बेसिक थिंग्स, द बेसिक कलर्स, प्राइमरी कलर्स अ चाइल्ड इज एबल टू आइडेंटिफाई. Now a child is able to count till 5 at this particular age. 3 to 4 years of age में till 5 a child is able to count. He has the concept of size, number and shape. Then coming on to 4 to 5 years, he follows 3 simple instructions. Read 3-letter words, tells meaning of familiar words. तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं. I know this was very technical today, but मेरा रीज़न टू डू दिस पर्टिकुलर सेशन वॉज बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, बट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रेड फ्लैग्स और कुछ नहीं है. इट इज़ नॉट समथिंग टेक्निकल, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दीज डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट ओनली. If you see your child is not doing that particular thing,
प्लीज़ स्टार्ट एक्नॉलेजिंग दोज टास्क दोज थिंग्स राइट अवे. अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, इनिशियली आपने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं कर लेगा कर लेगा कर लेगा, अगर आपने उस डेवलपमेंट में एक्चुअली डिले कर दिया, देन चाइल्ड इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू पेस अप. आप देख रहे हो कि आपके बच्चे में कुछ डेफिसिट्स हैं, आप देख रहे हो कि मेरा बच्चा ये चीज़ अभी नहीं कर पा रहा, बजाय कि हम उसको इग्नोर करें कि जो एक नॉर्मल पैटर्न है डेवलपमेंट का, हमें पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे बच्चे की जो एक ग्रोथ होती है, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो उससे निकल चुका है. ही इज़ नॉट डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क. से फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड हैज़ टू स्पीक सिंगल वर्ड्स, बट वो अपनी इस वाली स्टेज पे सिंगल वर्ड्स नहीं बोल रहा है. इट इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम. बट आई ऑलवेज से दैट देर आर दोज इश्यूज जहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये अपने पैटर्न से डिविएटेड है. उसका रीज़न ये है कि अगर हम ये चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम अभी इग्नोर कर लेंगे एज पेरेंट्स, बट जब बच्चा स्कूल जाएगा, ही नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ एक लेवल होता है कि स्पीच का लेवल है, टॉयलेट ट्रेनिंग का लेवल है. फिर आपको स्कूल से कंप्लेंट आएगी दैट योर चाइल्ड इज़ नॉट कॉम्प्रीहेंडिंग. ऐसे करते करते आपका एक्सेप्टेंस करने में द चाइल्ड रीचेज एट द एज ऑफ 5. देन व्हाट हैपन, द क्रिटिकल पीरियड goes away, the right time for the intervention goes away, and then a child actually loses that particular time. जहाँ पर हम उसको कवर अप करा सकते थे, हमने वहाँ पे एक्नॉलेज ही नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ आर फियर कि हाय मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो. सी, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. अगर प्रॉब्लम है तो वो परसिस्ट करेगी करेगी. अगर आपको बुखार है तो वो रहेगा रहेगा. बट द फैक्ट इज, इफ यू एक्नॉलेज दैट बुखार एट 99, इट विल नॉट गो टू 102. इफ़ यू डू नॉट डू दैट, अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो कि ठीक है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, तो वो 99 से 105 भी चला जाएगा. देन व्हाट हैपन्स, इट इज़ डेंजरस फॉर यू. सिमिलरली, इफ़ यू इग्नोरिंग द सिम्टम्स ऑफ अ चाइल्ड कि ठीक है इश्यूज हैं, कर लेगा, कवर अप कर लेगा, बोल लेगा, नहीं बोल रहा तो बोल लेगा, नहीं बैठ रहा तो बैठने लग जाएगा, बट आप उसके क्रिटिकल पीरियड्स मिस कर रहे हो. आप उसका वो टाइम मिस कर रहे हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा. फिर क्या होता है, नॉर्मली इफ़ यू सी द इंटरवेंशन में जब हमारे पास बच्चे आते हैं, वो उस पर्टिकुलर एज पे आते हैं, एट द एज ऑफ 9, एट द एज ऑफ 10, जहाँ पे एक्चुअली टाइम निकल चुका होता है. अब वहाँ पर गैप इतना हो चुका होता है. जब गैप बढ़ जाता है तो उस गैप को डिक्रीज करने में बहुत टाइम लगता है. if you see that a child is coming to you at the age of 2 years of age, जहाँ पे वो बात नहीं कर रहा, जहाँ पे उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, you can do much more things with a child because there are lesser of behavior issues, stubbornness कम होती है, बच्चा ग्रो तो कर रहा है, माइंड तो ग्रो कर रहा है. इफ़ यू ब्रिंग द सेम चाइल्ड एट द एज ऑफ 10 टू अस एंड से कि अब ये बोल नहीं रहा है, इसकी क्लैरिटी नहीं है स्पीच में. I'll just share a small kind of a thing with you. If a child is not speaking clearly, या स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है, आपने उसको एड्रेस नहीं किया टिल 5 to 6 years ऑफ एज कि ठीक है ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा. बट फिर क्या होता है कि when you bring the child at the age of 7 or 8 to a speech therapist or interventionist, वहाँ पर उस टाइम पे बच्चा बड़ा हो गया है, सेल्फ इस्टीम बच्चे की ग्रो करने लग गई है, कॉन्फिडेंस ग्रो करने लग गया है. एंड व्हेन यू बाउंड हिम विद दिस सर्टेन इश्यूज, जहाँ पे उसे लगने लग जाता है कि मेरे अंदर कोई डेफिसिट्स हैं कि मैं इंटरवेंशन जा रहा हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करता है, बट बड़ा बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी रियलाइज़ करता है. उसका कॉन्फिडेंस शैटर होने में सेकेंड्स लगते हैं. सो if you see these red flags in your child, you need to address it same time of age. I am not saying that जो मैंने आपको एक स्टेजेस बताई कि 3 to 4 में ये अचीव हो जाना चाहिए, तो अगर 4 से एक भी दिन ऊपर हो गया और बच्चे ने नहीं किया तो देर इज़ अ प्रॉब्लम. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. वी ऑलवेज टेक दैट प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट. कुछ बच्चे, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड. कुछ बच्चों का डेवलपमेंट जल्दी होता है किसी डोमेन में, किसी बच्चे का लेट होता है. बट इफ़ यू सी दोज फ्लैग्स एंड यू हैव सीन दैट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ डेफिसिट्स तो हैं, देन सर्टेनली आप उसको रियलाइज़ करो, आप बच्चे को स्टिमुलेट करो. आप उसको जितना स्टिमुलेट करोगे, आप उससे जितना एक्नॉलेज करोगे इस बात को,
सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करके बताती हूँ दैट वी गॉट अ चाइल्ड इन आवर I got to see a child who was not speaking at all. He was like somewhere around 3.5 years of age. और कोई स्पीच नहीं थी उस बच्चे के अंदर. when we actually tried to figure out कि उसकी cognitive development, उसकी intellectual development was very nice. He had all the knowledge of each and everything. उसको numbers पता थे, उसको alphabets का concept था. But the only thing was that the child was not able to speak up. Reason being कि वो क्यों नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसका expression नहीं था language का. The speech was delayed. Then we took the case history, हमने थोड़ा सा explore किया. Then we got to know that both the parents are working. So वहाँ पे कहीं ना कहीं I felt कि कुछ ना कुछ चीज़ है जहाँ पर बात नहीं हो पा रही है बच्चे से. Then we further explored, interviews किए पेरेंट्स से, मदर से अलग, फादर से अलग. Then we got to know that a child from 8 a.m. to 8 p.m. stays with a maid. That's fine. Working parents होते हैं. Then we tried to had an interview with a maid also. Then we realized that उस maid को हिंदी तो बहुत कम आती है. She was from a different background with a different language. उसे हिंदी नहीं आती थी, बच्चे को उसकी लैंग्वेज नहीं आती थी. पूरा दिन ऐसा नहीं था कि the maid was not working with a child. A maid was working with a child. But the thing was that वो दोनों जेस्चर से एक दूसरे को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे थे. सो बच्चे को क्या लगा दैट दिस इज शायद द नॉर्मल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट. सो उसको एक्सपोजर नहीं था बिकॉज वो कहीं बाहर खेलने नहीं जाता था, घर में रहता था उस मेड के साथ. सो बच्चे का एक्सपोजर ही नहीं हुआ लैंग्वेज का. उसे पता ही नहीं था कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होगी या क्या बात करनी है या क्या मांगना है. मम्मा पापा 8 बजे आते थे, दे यूज टू टॉक अ लिटिल एंड दे यूज टू स्टॉप एंड दे यूज टू स्लीप. सो आप वहाँ देखो कि यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दैट स्टिमुलेशन इज़. हम जितना स्टिमुलेट करते रहेंगे बच्चे को, जितना हम उसको एक्सपोजर देते रहेंगे, तभी हम बोलते हैं यू हैव नीड टू हैव स्टोरीज. हमें उसको अब एक बार एक दिस इज समथिंग रिलेटेड टू, आई हैड वन ऑफ द पेरेंट जिनका बड़ा बेटा वॉज ऑटिस्टिक एंड दूसरा वाला बेटे के साथ द इशू वॉज जैसे ऑटिज्म में यू सी दैट पर्टिकुलर पैटर्न कि वो व्हील्स के साथ प्ले करता था. बड़ा वाला बेटे की प्रेफरेंस वॉज ओनली कार्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सेम ऑटिस्टिक पैटर्न, रेपिटेटिव बिहेवियर थे. अब छोटे वाले बेटे ने क्या किया, ही स्टार्टेड फॉलोइंग द सेम थिंग. ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द टॉयज, सिमिलर कार्स, सेम वही व्हील वाला पैटर्न. सो मदर वॉज ओवरवेल्म्ड, शी वॉज स्ट्रेस्ड कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, दूसरे वाले को भी ऑटिज्म हो गया है. एंड वेन वी केम एंड एक्सप्लोर एंड हमने उससे बात की, बच्चे वी डिडंट फाइंड एनीथिंग इनसिग्निफिकेंट इन द चाइल्ड, नो एटिपिकल डेवलपमेंट. द ओनली थिंग वॉज जो टॉयज हम उसको स्टिमुलेशन के लिए बच्चे बड़े वाले को दे रहे थे, हमने सेम वही चीज़ें छोटे वाले को भी दे दी. अब उससे क्या हुआ कि बच्चे ने बड़े वाले को देखा, उसको लगा दिस इज़ अ नॉर्मल पैटर्न, सो ही स्टार्टेड प्लेइंग इन अ नॉर्मल वे. जब हमने उसका इंटरवेंशन किया, करेक्टिव बिहेवियर्स करे, दैट बिहेवियर एक्चुअली वेंट अवे. द चाइल्ड स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट, उसके प्रेफरेंसेस बदल गए टॉयज़ के. सो समटाइम्स कहीं ना कहीं हमारे एंड पे ही वो चीज़ नहीं हो पा रही होती है. हमें वो छोटे छोटे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. In the first case where I was talking about the maid wala thing also, we gave him a lot of exposure. He is used to come to us for the social needs. हम बहुत ज़्यादा मीटिंग इन ग्रीटिंग, उसको हमने सोशल एटिक्स के बारे में बात करी. Then we saw a huge change in him. He started talking, expressing his feeling. उसने एक्चुअली अंडरस्टैंड किया कि व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट वाज, बिकॉज हमने उसको एक्सपोजर नहीं दिया, हमने उसको स्टिमुलेट ही नहीं किया था. एंड जब हमने उसको स्टिमुलेट ही नहीं किया था तो बच्चे को तो पता ही नहीं था कि हाउ टू गो अबाउट इट. सो दिस इज़ वन थिंग वेयर वी नीड टू आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स. रेड फ्लैग्स अगर हैं और आपके स्टिमुलेशन से भी नहीं जा रहे हैं, please go and see a pediatrician. Please go to the intervention center and get him checked. अगर आपको लगता है कि हमने जो इनिशियली मैंने बात की, आपका स्कोर लो था, डिलेड क्राइंग थी, यू सी लॉट ऑफ फिजिकल डी एक्टिविटी इन अ चाइल्ड, कि बच्चा ज़्यादा बैठ नहीं रहा है, नेक होल्डिंग नहीं आ रही है, स्पीच डिलेज हो रहे हैं, ईटिंग डिलेज हो रहे हैं, चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू होल्ड हिज टंग, सलाइवा ड्रॉप कर रहा है, दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल रेड फ्लैग्स. होल्डिंग नहीं है, पिंसर ग्रास्प नहीं आया है, ही इज़ नॉट एबल टू
बड़ा हो गया है, 4 इयर्स का हो गया है, बट उसको एक्चुअली परसेप्शन नहीं है कि बॉल कहाँ से आ रही है, मुझे कहाँ कैच करनी है। अब यहाँ पे भी दो फैक्टर्स हो सकते हैं कि हो सकता है आपने उसको कभी खेलने ही ना दिया हो, और हो सकता है कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम हो। सो दीज red flags are the important measures. The intervention is the important measure where actually the thing will get corrected. It is not labeling your child or doing something. It is not a taboo to bring your child to the intervention. It is for, the good, it's because you're trying to help your child in certain things. It's for the well-being of a child. Uska overall development ke liye you are doing certain things. I have seen, children from zero age, like I can say for 1 or 2 days, the kids who were in NICU, so that's neonatal ICU, वहाँ के बच्चे मैंने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो डीलेड क्राइंग है, इंक्यूबेटर्स में है, जॉन्डिस है, या कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं. आई हैव सीन दैट, एंड they used to come to me for the follow up. The parents used to come after every 1 month. हम क्या करते थे, what you can do is that you can create a milestone list कि मेरा बच्चा भी इस ब्रैकेट में फॉल करता है, ये चीज़ें उसको अचीव करनी है. इफ़ यू फील कि बहुत डिविएशन आ गया है, ये नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, सो जब वो बच्चे भी फॉलोअप के लिए आते थे, निक्कू वाले बच्चे हमारे पास, द आईसीयू वाले, हम क्या करते थे, हम सिर्फ उनका करंट माइलस्टोन्स चेक करते थे कि ओके, सो नाउ ही हैज़ टू अचीव दिस. इफ 90% इज बीइंग अचीव्ड, it's fine, there are no red flags in a child. But if you see red flags in the child, then the intervention has to go. और ऐसा भी नहीं है कि it has to go lifelong, it has to be initially. सो बहुत बार हम हेजिटेट कर जाते हैं सोशल टैबूज़ की वजह से, मेरे बच्चे को नॉर्मल कह रहे हैं, मेरे बच्चे को नॉर्मल नहीं कह रहे हैं. आप एक्सेप्ट उसे 5 साल के बाद भी करोगे, बट उस 5 साल में उसका बहुत लैग कर दिया आपने. It is always better, it is always good to recognize the problem, the root cause, as it is as it is coming to you. जितना जल्दी आप उसको रियलाइज करोगे, उतनी जल्दी बच्चा भी ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर, मतलब यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द फैक्ट कि ये चीज़ को मुझे कवर अप कराना है, मुझे इस पर ज़्यादा काम करना है. So we actually at our place have a mother, a brilliant mother, who's not he she was actually not aware about the child's condition. So the child came to us. First instance mein I noted that a child is autistic. There are not exactly autistic, but there are autism wale symptoms in a child. What to do now? क्या डायरेक्टली हम बम्बार्ड कर देंगे पेरेंट के ऊपर कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है? नो, we actually identify certain traits कि okay, these are the things, ये वाले symptoms हैं, and now we need to sensitize the parent. बहुत टाइम लगा पेरेंट को सेंसिटाइज करने में. दे वेंट फॉर द द असेसमेंट, बड़ी मुश्किल से. वहाँ पर उन्होंने लिखा कि ऑटिज्म ट्रेट्स थे. दे केम बैक टू अस, वी स्टार्टेड द इंटरवेंशन विद द चाइल्ड. नाउ दैट चाइल्ड हैज़ रीच्ड फ्रॉम ऑटिज्म, केम आउट फ्रॉम द ऑटिज्म ट्रेट्स टू ADHD. एंड आई एम श्योर कि जिस हिसाब से द मदर एंड द इंटरवेंशन इज गोइंग हैंड बाय हैंड, द चाइल्ड इज गोइंग टू इम्प्रूव फॉर श्योर. सो क्या कर रहे हैं हम कुछ स्पेशल एक्टिविटी नहीं कर रहे, ना हम कोई दवाई दे रहे हैं. वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द यू नो फिलिंग इन द पजल. जो पीसेस मिसिंग हैं उसके उस डोमेन पे काम करके, जस्ट हेल्पिंग द चाइल्ड टू ग्रो इन अ बेटर वे. सो द ओनली रिक्वेस्ट इज टू accept the fact that there are some limitations in a child, if they are there. Provide the stimulation. If this, after the stimulation also you see the same kind of traits in a child, try to go to a fit pediatrician as soon as possible. You need to recognize these red flags which are very important for a development of a child. जब 5 years के बाद बच्चा क्रॉस कर जाता है, उसके बाद उसको उस इंटरवेंशन स्टेज पे लाना इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट. सो यू एज अ पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गुड और बैड. I hope this session has actually helped all the new parents to understand why it is so significant. The 5 years of birth are so significant, and why understanding the red flags is important. Because if you understand now, it is going to help you forever and your child for sure. I'm leaving my number. You can contact me if you have any query about the developmental issues. I'll be sharing a chart with all of you which says how exactly the milestones go in whatever I have told. I'll be sharing the chart on my page. You can just go through it. And I'll meet you next week with a lot of new discussion points and new topics. And I hope you all stay safe. It's again like the numbers are growing and we all have to be safe. So all the love to the little munchkins. Take care. Stay safe. Bye bye.